Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे और आज दिन शनिवार का है। आज के दिन हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं, वे अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित या देश की इकोनॉमी से संबंधित कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23770106। तीनों नंबर दिल्ली के लैंडलाइन 011 कोड के साथ आप इन नंबरों पर फोन करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली मौजूद हैं स्टूडियो में। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। Now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Dhanyavad Harsh. Domestic share markets logged gains of around 0.5% in the week ended yesterday. Sensex closes above the 60,600 level. Nifty finishes above the 18,000 mark. And the US stocks witnessed gains amid company results and job cuts. इस सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़ोतरी। सेंसेक्स 60,600 और निफ्टी 18,000 के ऊपर। कंपनी के नतीजों और छंटनी के बीच अमेरिकी बाजारों में भी तेजी का रुख। S&P 500 और डाउ जोन्स में 3 सत्रों से जारी गिरावट थमी। नैस्डैक में 2% की तेजी। ये सप्ताह सोमवार से लेकर शुक्रवार यानी कल तक बेहतर रहा घरेलू शेयर बाजारों के लिए, क्योंकि इनमें 0.5% की तेजी रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60,600 अंक के ऊपर रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 18,000 के ऊपर रहा। खरीदारी बिकवाली के उतार चढ़ाव भरे सत्रों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने लगभग 0.5% की छलांग लगाई। सप्ताह के 5 सत्रों में 3 सत्रों में सेंसेक्स निफ्टी हालांकि कमजोर हुए थे, लेकिन 2 सत्रों की बढ़त ने इन्हें साप्ताहिक उछाल दिया। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स में 0.6% यानी 361 अंक की तेजी रही और ये 60,622 पर रहा, जबकि निफ्टी में 0.4% यानी 71 अंकों की तेजी रही और ये 18,028 पे रहा। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप 0.66% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.79% की गिरावट रही। We have 2 callers online with us, one from Mumbai and the other from Delhi. First we go to Mumbai and say hello to Hashmukh Tidia. Warm welcome Hashmukh ji. Please ask your question. Yeah, good evening Market Mantra. Good evening. My question is that in this budget, which sectors are going to get benefit from our FM, and for 2023-24, which sectors will get benefit and should be invested from here now? Well, a very interesting question, Hasmukh ji, about the sectors. I think the government has to do a bit of a tightrope walk, while making the budget, because it has to maintain fiscal discipline, at the same time ensure that there is a sustained growth. As we all know, India is a shining star in a bit of a gloomy situation around the world. So I think the sectors which will gather more attention is, I can name a few for you, although the government will try and make it as a 360-degree budget where it is able to allocate something for everyone. But the sectors which will particularly get attention is agriculture, without doubt.
defense sector without a doubt. Apart from that, we can look at education, health, skill development. These are some of the sectors, because in the current economic scenario where maintaining, sustaining and carrying on with the momentum of growth would be a challenge, because there are headwinds as far as the global economy is concerned, and the Indian economy in 2023 is likely to face that headwind. So I think it will be a challenge for the government to make sure that the momentum in the growth is maintained. In fact, not maintained, but it should go up further. So these are some of the sectors which I feel will definitely. Apart from that are the other welfare schemes which the government has launched. I think it will try and propel those schemes to the next level. The biggest focus I think would be on capex, infrastructure. Last year's budget allocation was, I'm speaking a bit elaborately, Rajesh and Harsh, because this might be question of others also. Last year's allocation for capex was about 7.5 lakh crores. I'm expecting about 9 to 9.5 lakh crores of allocation for capex, because that's one of the prime engines for any economy. And the moment that engine starts firing, you find that the other engine of private investment, consumption, export, they all start firing. So Hasmukhji, those are some of the sectors. Fingers crossed. Let's wait. We've got a few more days left before the budget comes. All eyes and ears are open, and like you, I'll also be very eagerly waiting for the announcements. सतीश चंद्रा के पास चलते हैं, अगले कॉलर दिल्ली से। सतीश जी, आपका स्वागत, सवाल पूछ सकते हैं आप। कोहली साहब को नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आईपीओ की वैल्यूएशन होती है जी, इस वैल्यूएशन में कैसे कौन करता है और कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि आप भी जानते हैं रिसेंटली आईपीओ आया था और उसमें ड्रास्टिक डाउन आ गया अभी जी, हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया पब्लिक का जी। Who is responsible and whether there is those people are accountable? Second question ये है, हाँ जी साहब, कि ये जो अभी बजट का आ रहा है हमारा जी, इसमें कौन सेक्टर में ज्यादा जोर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस सेक्टर में? चलिए सतीश जी, आपका जो दूसरा सवाल है, मैं अभी आप इसकी जब कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग YouTube वगैरह पर देखेंगे तो मैंने उसका काफी इलैबोरेट जवाब दिया, फिर भी मैं हिंदी में इसको संक्षेप में बताऊंगा। आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि आईपीओ की वैल्यूएशन के लिए कौन जिम्मेवार होता है, देखिए आईपीओ को के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको उनका नाम बताता हूं, एजेंसीज का। उसमें मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, और एक DRHP एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इस प्रोस्पेक्टस को बना के इसमें सारा कंपनी का लेखा जोखा, पूरी जन्मपत्री समझिए कंपनी की होती है, इसको सबमिट किया जाता है सेबी के पास। उसी में फंड्स किस लिए जुटाए जा रहे हैं, कहां इस्तेमाल किए जाएंगे, ये जो प्रीमियम प्राइस डिसाइड की गई है ये किस आधार पे की गई है, पिछली बैलेंस शीट्स लगती है कंपनी की, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में। तो कुल मिला के ये लेखा जोखा सारा इसको पूरे ढंग से बनाया जाता है। अब होता क्या है, कई बार जब आईपीओ आता है तो जो मार्केट की कंडीशन, जिस टाइम उसकी वैल्यूएशन की जाती है, मार्केट की कंडीशन X होती है, और जब आईपीओ आता है मार्केट की कंडीशन Y हो जाती है, Z हो जाती है, मतलब मेरा मतलब है बदल जाती है। तो इसमें किसी को हम सतीश जी, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कौन जिम्मेवार है, क्योंकि इसमें मार्केट में जब भी आप निवेश करते हैं, चाहे आप आईपीओ के थ्रू आए, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट में करें, तो मार्केट में, बल्कि यही छोड़िए, आप जो म्यूचुअल फंड्स भी इक्विटी में डालते हैं, वहां पर एक जल्दी से लाइन बोली जाती है, म्यूचुअल फंड्स आर एक्सपोज टू मार्केट, यू शुड रीड द प्रोस्पेक्टस प्रॉपर्ली क्लोजली, जो आप देखते होंगे जल्दी से और आप उसको ध्यान से पढ़ें, तो मार्केट में हमेशा ही ये रिस्क। तो मार्केट में सतीश जी हम किसी को अकाउंटेबल ऐसे नहीं ठहरा सकते कि आपने इस वैल्यूएशन पे लिया था। मुझे लगता है कि आपके सवाल को मैं अगर दूसरी तरीके से करूं और उसका जवाब मैं एक और नए तरीके से दूं, तो मैं सभी निवेशकों को यह कहूंगा कि आप जब आईपीओ में लगाते हैं, उस समय अगर आप अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बना लें, मेरा मतलब आप कंपनी का पूरा बैकग्राउंड देखें, उस सेक्टर को देखें, उसका भविष्य देखें, उसकी बैलेंस शीट्स को स्टडी करें, बहुत मेहनत करके। मैंने देखा ज्यादातर लोग, राजेश और हरीश इस बात को मानेंगे, ज्यादातर लोग सुनी सुनाई से बड़ा अच्छा आईपीओ है, या मेरे दोस्त भी बता रहे थे, बैंक वाला भी बता रहा था, ज्यादातर लोग आईपीओ में इस तरीके से निवेश करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप अपनी रिसर्च करके सतीश जी करें तो लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, क्योंकि आपने उस पर इतना समय लगाया होगा। तो अगर आप चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे, तो पहले आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है, क्योंकि मार्केट ड्रिवन है। दूसरा, आपने बजट के पूछा तो मैंने अभी नाम लिया था, अब तो मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा एलैबोरेटली बताया था। डिफेंस सेक्टर पे मुझे कोई शंका नहीं लगती कि उस पर अच्छा एलोकेशन होगा। हमारे एक दो पड़ोसी थोड़े से कई दफे वहां शरारती हैं और वहां कुछ हरकत होती रहती है, तो उसमें सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हम एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है,
तो मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर को कभी भी नजरअंदाज किया जा सकता। उसके अलावा एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, हेल्थ सेक्टर है, कोरोना अभी भी हमारे दरवाजे पर खड़ा है। MSME भी एक इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, मैंने तो यहाँ कहा, मैं तो महिलाओं से लेके, बच्चों से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा एक ऐसा लड्डू जब आप मंदिर से निकलते हैं और प्रसाद का एक ही लड्डू मिलता है और बाहर लेने वाले 10-15 खड़े होते हैं, तो आप क्या करते हैं, लड्डू का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, अब लड्डू का मेरा मतलब है रिसोर्सेस हमारे सीमित हैं, उसी में हमको थोड़ा थोड़ा सबको देना है, तो सभी सेक्टर्स को मिलेगा। पर मुख्यतः मैं आपको बता रहा हूं जहां ज्यादा बड़ी एलोकेशन, और एक मैंने जिक्र किया था सतीश जी, अभी आपसे पहले हंसमुख जी पूछ रहे थे, केपेक्स को बहुत बड़ा एलोकेशन मुझे लग रहा है कि 9-9.5 लाख रुपए, मेरा अपना अनुमान है कि वो एलोकेशन इस बार जाएगा, 10 लाख के पास भी जा सकता है, क्योंकि वो एक इंजन है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का, और सरकार उसके लिए कमिटेड है और उसका लाभ कई गुना मिलता है देशवासियों को। तो ये कुल मिला के बाकी बजट के इंतजार आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, देखिए कहां तक ये अटकलें सही निकलती हैं। जी, काशीनाथ फ्रॉम मुंबई जॉइन्स अस। काशीनाथ, a warm welcome. Can you hear us? क्या काशीनाथ जी, क्या आप जुड़े हुए हैं? हमारी आवाज आप तक जा रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। I think we've lost touch with him. Let's move on to Delhi now. We have Bharat Bhushan online with us. A warm welcome, Bharat ji. जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई आप लोगों को सर। जी धन्यवाद, पूछें सवाल। ये है सर जी, जो सरकार काफी सारे प्रयास कर रही है दुग्ध उत्पादन डेयरी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर जी, और अच्छी बात है, परंतु फिर भी सर क्या हमें ये नहीं लगता है सर कि हमें डेनमार्क से हमें कुछ तकनीकी सहयोग मिले? और दूसरा सर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमारे देश भी में जोर लग रहा है कि भैया ठीक है हम इलेक्ट्रिक वाहनों का वो करके अपना बचत करेंगे ऊर्जा का, अपने ऑयल पेट्रोलियम का इंपोर्ट, बट सर उसके लिए जो रॉ मटेरियल है लिथियम, उसका मेन जो रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे, तो क्या फिर हमारा आयात बिल नहीं बढ़ेगा सर इससे? धन्यवाद सर। देखिए, आपने दुग्ध उत्पादन का भारत भूषण जी पहला सवाल पूछा है, आपने डेनमार्क का नाम लिया। खाली डेनमार्क ही नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे देश की जो बड़ी बड़ी सरकारी और सेमी सरकारी और जो निजी क्षेत्र के संस्थान हैं, वो निरंतर यूरोपियन देशों में जहां पर दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा होता है, आपने बिल्कुल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का नाम लिया, उसमें डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, यहां से बाकायदा उनके साथ टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता रहता है, नॉलेज का आदान प्रदान होता रहता है, और आप तो मुझे लगता है कृषि क्षेत्र से काफी निकट से संबंध रखते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि मवेशियों को पाल पोस में जिस चारे का प्रयोग होता है, जिन दवाइयों का प्रयोग होता है, जिन वैक्सीन का प्रयोग होता है, और चारे में ऐसी विशेष चीजें डाली जाती है जिससे दुग्ध उत्पादन ज्यादा हो, उनकी सेहत अच्छी रहे, इस पर भी बहुत विचार विमर्श चलता रहता है। और जो हमारी बड़ी डेयरीज हैं देश में, उन्होंने पूरा R&D सेल बना रखा है, जो कि न केवल विदेशी संस्थाओं के टच पे रहता है, बल्कि किसानों के और उन दुग्ध पालन जो किसान हैं हमारे, या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों से भी निरंतर संपर्क में रहते हैं। और कहीं कोई मवेशी, मुझे तो यहां तो पता लगा कि जैसे मवेशी को बीमार पड़ता है, और मान लीजिए एक 100 के ग्रुप में मवेशी में 10 बीमार पड़ गए, तो उन पे खास एक टीम भेजी जाती है जिसपे वैक्सीन और दवाइयों का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वापस उनको जब तक ठीक नहीं हो जाते वो उनको उस हाल पे नहीं छोड़ते हैं। दूसरा, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूछा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक बात है कि लिथियम पे डिपेंडेंट है ईवी इंडस्ट्री सारी। अभी फिलहाल वो चाइना से और कुछ अन्य जगहों से उसको इंपोर्ट किया जा रहा है, इस बात में कोई दो शंका नहीं है, परंतु इस पे जितनी रिसर्च चल रही है भारत भूषण जी, वो इतनी चल रही है कि शायद ही भारत में इस समय कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें ईवी से ज्यादा रिसर्च चल रही हो, क्योंकि बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए, चार्जिंग स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए एक नई चीज मैं आपको बताऊं कि जो नई चीज आ रही है, क्योंकि होता कि आपकी इलेक्ट्रिक कार अगर कहीं खड़ी हो गई तो आप चार्ज करने के लिए अगर आधा पौना घंटा खड़े हो गए, आपको तो कहीं जल्दी पहुंचना है, तो अब ये बैटरी इंटरचेंज और एक्सचेंज का प्रोग्राम चल रहा है कि आपको ऐसी बैटरीज आएंगी जो किसी भी गाड़ी में, कितनी भी हॉर्स पावर की गाड़ी हो, कितनी भी पावर उसकी टॉर्क हो, वो उसमें लग जाएगी, और आप फटाफट अपनी बैटरी दीजिए, जैसे जैसे आप एलपीजी सिलेंडर्स में करते हैं, आपका सिलेंडर गया पता नहीं कहां, दूसरे का सिलेंडर आपके यहां आ गया, कुछ ऐसा ही विचार विमर्श चल रहा है। लिथियम पे हमें पूरी उम्मीद है, बहुत जल्दी इस पे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय काम कर रहा है, बहुत जल्दी भारत भूषण जी आपको लिथियम में हम आत्मनिर्भर होते दिखेंगे, और तब आप ईवी की रफ्तार देखिएगा। मेरा मतलब गाड़ी तेज मत दौड़ाइएगा, पर ईवी सेक्टर की ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है। और नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं लगातार इस बारे में वो बोलते रहते हैं, और बहुत ही अच्छा पिक्चर, और बहुत पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी उन्होंने हाइड्रोजन, और अब आपको भारत भूषण जी को हम ये भी बता देते हैं कि इसके और विकल्प भी देखे जा रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी है,
जिसमें आप देखेंगे एथेनॉल है, जिसमें आप देखेंगे कि खाली इलेक्ट्रिक नहीं, आपको अब कई तरीके से गाड़ियां चलती सड़क पे अगले कुछ आने वाले वर्षों में दिखाई देगी। और भारत इसमें दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अगले कॉलर हैं वरुण, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं। Very good evening to the Market Mantra team. Good evening. Sir, my question is, as we see that the salaried class is the one which takes the burden of most of the tax income that is generated in the country. In the coming budget, so do you see any benefits that can or any relief? Because even if we see that fixed deposit that is taxed, or the mutual fund, in the mutual funds also we see that short-term gain and long-term capital gains are taxed. So do you foresee any relief for the salaried or the middle class? Thank you. Varun, this is anybody's guess, because, to make a contemplation or to make a guess on the budget is a very tough call and may not be the best thing to do at all times. But your thought is right. Yes, the salaried class does contribute a lot of, tax to the overall tax kitty. And I also say often that salaried class are the most honest taxpayers, because for them salary comes after deduction and there's nothing much they can do except for a few allowances here and there, little bit on ATC, ATD or ATG or whatever, so they can't do much on their taxation. Well, I think this relief is overdue, and we are expecting that although I believe that Finance Ministry and the Honorable Finance Minister who is in charge right now, I think the thought is more towards simplification of tax. And I think the era of deductions and exemptions and giving these SOPs here and there, because the tax rates as per them has been more rationalized. That's why the new tax regime was introduced, but somehow the new tax regime did not find many takers. So I am expecting, Varun, that maybe in the new tax regime this time, there might be some of the deductions which might be moved to the new tax regime to make it more popular. Baki, to make any guess, we are as good as you are, so we can also make guesses. But yes, if middle class or if the salaried class gets any benefit, the way you would be happy, we all would be happy as much, I would say. कांता देवी गुरुग्राम से हमारे साथ हैं। कांता जी नमस्कार, सवाल पूछ लें। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल दुरुस्त आ रही है जी। सर मैं एक पर्सन और पूछ लूं, शांति हो जाएगी। हाँ जी। सीनियर सिटीजन का 15 लाख रुपए वाली स्कीम होती है जी, जो ब्याज लेते हैं सीनियर सिटीजन 8% का जी, उस पैसे वो भी सरकार में जाता है कि वो बैंक में रहता है? देखिए, ये व्यय वंदना स्कीम की बात कर रहे हैं, जिसमें 15 लाख तक सीनियर सिटीजन जमा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो देखिए, जो स्कीम एलोकेटेड होती है, जब किसी स्कीम के नाम से पैसा जमा किया जाता है तो उसको एडमिनिस्टर तो बैंक ही करते हैं। मतलब तो आप इसको, अगर मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूं तो बैंक के जो ओवरऑल डिपॉजिट्स आते हैं उसी खाते में जाता है, उससे लोन भी दिए जाते हैं और उससे आपको ब्याज भी मिलता है। तो सरकार के खाते में नहीं, जो सरकारी बैंक है वो अपनी उसको लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, निजी बैंक भी उसको लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार जब ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करती है जिसमें बैंक को डिपॉजिट लेने का अधिकार होता है, तो उसमें इस्तेमाल उसको बैंक करेगा, पर उसका उस स्कीम के अंतर्गत करेगा, पर उसको ब्याज उतना देना पड़ेगा जितना स्कीम में प्रॉमिस्ड है। तो कांता देवी जी, आपके बात का मैं सरल जवाब दूं तो इसको सरकार के खाते में क्या, बैंक इसको इस्तेमाल करते हैं आगे लोन देने में। मतलब जैसे बाकी डिपॉजिट्स होते हैं उसी प्रकार इस डिपॉजिट को ट्रीट किया जाता है। Does the scheme has come under lock-in period? You mean lock-in period for this thing? No, you are allowed to make a deposit of, I think the minimum deposit period is 3 years if I am not wrong. So lock-in for 3 years. हाँ, but that still doesn't challenge the usage of funds. Okay. Yeah. Ratnakar from Mumbai joins us now. Ratnakar, a warm welcome to you. Please go ahead with your query. Hello, good evening sir. Good evening. सवाल है कि ये जो अभी कमिंग फाइनेंशियल बजट है जी, तो अभी 2024 का इलेक्शन सामने देख के रियायती कुछ ज्यादा बढ़ सकती है क्या, और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ावा हो सकता है क्या, ये है क्या? तो दूसरा सवाल है कि इनकम टैक्स में कैलकुलेशन के जो दो सिस्टम उन्होंने पहले से लिखे हैं जी, तो उन्होंने वो दो सिस्टम का क्या फायदा है? अभी उसमें से एक सिस्टम बंद हो सकती है क्या कैलकुलेशन से? अच्छा, चलिए रत्नाकर जी, आपके सारे ही सवाल टैक्स से संबंधित हैं। पहला वाला आपने कहा, देखिए मुझे लगता है जो सरकार, मैंने जहां तक प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी की जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, जहां तक उनको सुना है, उनका तो कहना ये रहता है, और ये सही भी हमने देखा है, कि वो इलेक्शन से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स ज्यादा नहीं करते हैं।
उनको और ऐसा मुझे लगता है कोई भी सरकार का ध्येय होना चाहिए कि अपने काम के आधार पर वोट मिलते हैं, ना कि ऐसी अनाउंसमेंट्स करके, क्योंकि अनाउंसमेंट्स ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के रत्नाकर जी सरकार बजट बनाएगी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, अगर मैं आपकी बात को आगे ले भी जाऊं तो अभी 1 फरवरी 2024 भी है, वो चाहे वो अंतरिम बजट होगा, वोट ऑन अकाउंट होगा, उसमें तो वो भी एक मौका है। अगर मैं आपकी बात को ही आगे लेके चलूं, ये आखिरी मौका, पूरे साल का तो आखिरी है, पर एक पार्ट मौका भी है। दूसरा, आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन का पूछा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए अभी है सैलरीड वालों के लिए, तो देखते हैं। उम्मीद तो सब सैलरी वालों को यही है। आपसे पहले साहब भी यही बात पूछ रहे थे कि क्या ऐसी कुछ उम्मीद है। उम्मीद तो हम रखते हैं कि शायद इन्फ्लेशन को देखते हुए, जो महंगाई से देश गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है, उसको देखते हुए शायद कुछ उसमें रियायत दी जाए, पर फिंगर्स क्रॉस्ड, हम तो यही कह सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि जो 2 टैक्स रिजीम्स हैं उसमें से एक हटाई जा सकती है। मुझे लगता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था, मुझे लगता है रत्नाकर जी के शायद जो नई टैक्स रिजीम है उसको थोड़ा सा लुभावना बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए, क्योंकि लोगों ने अपनी हाउसिंग लोन लिए हुए थे, एटीसी थी, एटीडी थी, उन्होंने अपनी डिडक्शंस एग्जेम्पशंस कमिट की हुई थी कई सालों के लिए, एनएससी था, पीपीएफ था, पीएफ था, तो उसको लोग छोड़ नहीं पाए। तो मुझे हो सकता है कि इस नई रिजीम को कुछ लुभावना बनाया जाए। पुरानी हटाई जाएगी, पुरानी हटाई जाने के चांस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी जो रीजन बताया, अब आपने हाउसिंग लोन लिया है तो 15-20 साल का लिया हुआ है, तो अगर स्कीम हटा ली तो लोन लेने का एक पर्पस जो टैक्स बचाने का था वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो ये मुझे कहीं नजर आता है। बाकी देखिए रत्नाकर जी, ये तो सब अटकलें हैं। अब पिटारे से वित्त मंत्री महोदया के क्या निकलता है, ये तो 1 फरवरी को पता लगेगा जी। और प्रणब और प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक हम बता दें कि बैंकों के और कंपनियों के कुछ नतीजे आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने तीसरी तिमाही के लिए अपने नतीजे घोषित किए हैं और बैंक ने 34% इसमें ज्यादा वृद्धि की है। अगर साल दर साल आधार पे हम बात करें, कंपनी का कुल प्रॉफिट जो रहा वो 8,312 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसके पिछले साल इसी अवधि के दौरान ये 6,194 करोड़ रुपए था। And also, Yes Bank's net profit in the third quarter of fiscal year 2022-23 dropped by 80% year-on-year basis to 52 crore rupees. Yes Bank, in a release today, said that the net profit quarter-on-quarter decreased by 66%. The net profit in second quarter of the current fiscal was 266 crore rupees. Aditya Birla Group company Ultratech Cement today reported 38% on year drop in its consolidated net profit at 1,058.2 crore rupees in the December quarter. Its revenue from operations, however, rose 19.5% year-on-year basis to around 15,521 crore rupees. प्रणब हमारे साथ सिलीगुड़ी से। प्रणब, आपका स्वागत, सवाल पूछ लें। Good evening to Market Mantra team. Good evening. So I want to know what is the future market prediction for the bond market in short term, in long term as well. And my second question is that if one want to invest in bond, keeping in view 3 to 4 months, 4 years horizon, can you name few instruments which would be best? Pranab, you see, as far as the bond market prediction is concerned, as you must be aware that the bond market rates are dependent on the repo rates, on the bank rates, on the lending rates. You know, the overall rates which govern the market, about which we have been talking so much in the last 1 year. You know, the rates have shot up across the world. So I think the bond market rates will be directly, but if the so-called recession sets around the world, I think we might see a reversal of the central banks, where they might go back to a bit of a dovish approach, where they would cut down the Indian lending rates are now over 7%. Even in America, it's over 5% now. So I think the bond market rates will be directly dependent upon the overall lending rates and the central bank rates. So in the times to come, so if the recession sets in, we can see some kind of reversal. Otherwise, at this point of time, the rates are high. And as far as your second question is concerned, we don't Pranada really name the bonds here, but if you want to know the kind of bonds, I think the best way to go would be the treasury bills which the government releases. If you want to go for corporate bonds, we cannot name them here, but if you want to go for the government treasury bills on the RBI website, time to time, this market wasn't open to retail investors some time ago. Now it's been open to retail investor. You can even invest amount as less as 10,000 rupees.
and they give you, and they are fully secured, and they give you as good a rate as per the repo rate or the applicable rates at that point of time. From Delhi, we are joined in by Pradeep. A warm welcome, Pradeep. Please ask your question. कोहली जी को और पूरी मार्केट मंत्रा टीम का नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ और मुझे कुल 11.45 का रिटर्न मिला है जी। अब मुझे अपना थोड़ा पैसा ना स्टॉक मार्केट में लगाना है सर जी। तो मुझे अपने निवेश की शुरुआत किसी ब्रोकर के थ्रू करनी चाहिए या ग्रो या ईटी मनी जैसी ऐप के माध्यम से करनी चाहिए, और सर दोनों में अंतर क्या ये भी बताइए सर। देखिए प्रदीप जी, पहले तो अच्छा रिटर्न, आप एक डिसेंट रिटर्न मैं कहूंगा आप ले रहे हैं। अगर आप 11.45% आपने रिटर्न जनरेट किया है तो एक डिसेंट रिटर्न है, बहुत बम्पर नहीं है, बहुत कम रिटर्न भी नहीं है, आप बैंक रेट से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। अब आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो देखिए, स्टॉक मार्केट में आने के लिए प्रदीप जी आपको मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ी सी तैयारी अच्छी करके चलिए, क्योंकि आप इतना अच्छा रिटर्न ले रहे हैं, ये ना हो कि स्टॉक मार्केट में आके ये भी जो आपने रिटर्न कमाया है वो भी कहीं गवा बैठे। तो तैयारी के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। एक तो आप मार्केट को पहले ऑब्जर्व करिए, सीधा मत लगाइए। हम लोग उसको कहते हैं कि पेपर करेंसी ट्रेडिंग। पेपर करेंसी ट्रेडिंग मतलब आप एक इमेजिनरी मनी, आप समझिए आपने ये 100 शेयर इस कंपनी के आज लिए और एक पैसे बना के रख लें, समझ लीजिए मैंने उसमें 1 लाख लगा दिया। अब इमेजिनरी है तो चाहे 1 करोड़ भी लिख ले, क्या फर्क पड़ता है। और फिर अगले दिन उसको आप बेचें, तो ये खरीद बेच आप एक इमेजिनरी करेंसी से, मतलब इमेजिनरी मनी से सीधा पैसा ना लगाएं, वो करें, देखें कि आपको कैसा रिजल्ट आता है, आप उसको ऑब्जर्व करें। और किस माध्यम के थ्रू आप करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट, अब आजकल तो ऑनलाइन है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने, ज्यादातर सारे ब्रोकर्स ने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना शुरू कर दिया है। आप अपने मोबाइल फोन से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, और किसी ब्रोकर से मदद लेना चाहते हैं तो आप किसी ब्रोकर से फोन करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि शुरू में आप किसी ब्रोकर से करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार बहुत स्पीड से काम होता है, रेट जो चाहे वो नहीं आता, तो आप किसी ब्रोकर के यहाँ फिजिकल अकाउंट खुलवाकर कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स की भी मदद आप ले सकते हैं, पर शुरू में आप किसी ब्रोकर से करें, उसके बाद आप ऑनलाइन पे आए। पर उससे पहले ये जो मैंने आपको रिसर्च टेक्निक बताई है, ये हम बहुत सोच समझ के राजेश बताते हैं, हर्ष बताते हैं कि आप इमेजिनरी मनी, समझ लीजिए मेरे पास 5 करोड़ है, अब जब इमेजिनरी है तो 5 करोड़ का 50 करोड़ भी हो सकता है, उसमें से 1 करोड़ लगाया फिर बेचा, तो 2-3 महीने देखिए कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके बाद आप छलांग लगाएं प्रदीप जी, तो आप ज्यादा मुनाफा कमाएंगे जी। Jagmohan from Gurugram, please stay with us as we tell you that the US stocks rallied to close higher yesterday. The S&P 500 and the Dow Index snapped a 3-session losing streak, and the Nasdaq index rose more than 2%. The US stocks gained as quarterly earnings helped lift Netflix, while Google parent Alphabet climbed after announcing job cuts. The Dow Jones Industrial Average rose 1% and the S&P 500 climbed 1.9% and the Nasdaq Composite Index surged 2.7%. और जगमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। जगमोहन जी, स्वागत आपका, सवाल पूछ ले। नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं पहली बात तो मैं दिव्यांग हूँ और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। दिल्ली में मेरे पास एक जमीन है, मैं वहाँ मकान बनाना चाहता हूँ। बैंक के पास जाते हैं तो वो लोन नहीं देते, क्योंकि बोलते हैं आरटीआई आप नहीं भरते। तो मेरे पास 25 लाख रुपया है और मैं चाहता हूँ, अगर बैंक वाले कहते हैं आप इस एफडी को बैंक में रख के इसके ऊपर लोन ले सकते हैं, तो आप ये मुझे राय दीजिए, ये बताइए कि ये लोन है जो मैं अपनी एफडी के ऊपर ही ले सकता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं 7% आपका मिल रहा है तो आपको 8% देना पड़ेगा। ओके, वी गॉट यू। जल्दी से बता दे बस, क्योंकि समय कम है जगमोहन जी, तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स रिटर्न और आपकी इनकम के आधार पर लोन दिया जाता है, तो हो सकता है उनकी तसल्ली ना, अगली बार पूछेगा, थोड़ा इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी बात सुन के तो यही लग रहा है कि एफडी के अगेंस्ट ही दिया जाएगा, क्योंकि अगर इनकम डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे नहीं है तो जी। आज समय इतना ही है, मार्केट मंत्रा में इतना ही। शरद कोहली जी, आप आए, अपने सारे सवालों के जवाब दिए, अच्छी ज्ञान की बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शरद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। And before we close the headlines once again, domestic share markets logged gains of around 0.5% in the week ended yesterday. Sensex closes above the 60,600 level. Nifty finishes above the 18,000 mark. And the US stocks witness gains amid company results and job cuts. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.